officially good morning to all of you guys. Myself Chandan Kumar. Today we are going to learn chapter 1.3 on wings of courage. In the last lectures we have learned 1.3 on wings of courage part 1 and some summary was left. Today we will complete that. Now we start. In 1944, the Marshal had led a squadron against the Japanese during the Arakan campaign, flying close air support missions during the crucial Imphal campaign, and later assisted the advance of the Allied forces to Yangon's, formerly Rangoons. In the last lectures, I have told you Arjan Singh was a British Indian Air Force. Okay, guys. During 1944, the World War was being on, and the World War is fought between Central Power and Allied Power. Central Power was British, France, USA, and some other countries like India, which are their colonies. Okay, and on the other side, the Allied powers consist of Japan, Germany, Russia, Austria. These are Allied power. Okay, the World War fought between them, and in India, the Japanese army from northeast entered. Okay, tried to enter in India and attack the British army. But here, Marshall had leader squadrons whose name, first squadrons, the campaign's names was kept Arakans. Okay, and this war fought at Manipur mission after the Imphal campaign. Later, Arjan Singh's advanced towards the Yangon, which is known as today Myanmar Burma. At that time, he was known as Yangon Rangoon. Okay, guys. Next, in recognition of his feat, he was awarded Distinguished Flying Cross (DFC) on the spot of Supreme Allied Commander of Southeast Asia, the first Indian pilot to have received it. उनके काम को देखते हुए वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट जो थी उनको क्या किया, फर्स्ट इंडियन पायलट थे जिनको अवार्ड दिया गया. कौन सा अवार्ड दिया गया? डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस DFC अवार्ड से नवाजा गया. वो एशिया के पहले ऐसे पायलट थे जिनको ये अवार्ड दिया गया. Singh was selected for the Empire Pilot Training Course at Royal Air Force Cornwall in 1938. When he was 19-year old, he retired from service in 1969. सिंह, अर्जुन सिंह को जो है फर्स्ट टाइम पायलट का ट्रेनिंग के लिए 19 साल के एज में चुना गया. कहां पे, कब? 1938 में फॉर कर्नवाल. और ये किस फोर्स के कोर्स कर रहे थे? रॉयल एयर फोर्स के ट्रेनिंग के लिए चुना गया था. और ये रिटायर कब होते हैं? 1969 में ही रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन 1969. Singh was born on April 15, 1999 in Lalpur, now Faisalabad, Pakistan, and completed his education at Montgomery, now Sahiwal, Pakistan. अर्जन सिंह जी के जो जन्म हुआ था वो 15 अप्रैल 1919 लायलपुर में हुआ था, जो कि आज फैजलाबाद पाकिस्तान में है. और वो अपना एजुकेशन मोंटेगमेरी, जो कि आज सहीवाल पाकिस्तान में, वहां से उन्होंने कंप्लीट किया. हिज फर्स्ट असाइनमेंट्स ऑन बीइंग कमीशंस वाज फ्लाई टू वेस्ट लैंड वापीती biplanes in the northwestern frontier province as a member of the number 1 RIAF Royal Indian Air Force Squadron. Okay. सिंह, अर्जन सिंह जी के जो पहला मिशन था उन्होंने कहा वेस्टलैंड वापीती से
बाईप्लेन, मैंने बाईप्लेन का मतलब बताया था, जिनमें दो क्या हो, विंग्स हो, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, बाईप्लेन्स बोलेंगे। वहां से उन्होंने बाईप्लेन से उड़ान भरी थी इन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस, जो आज का हमारा पाकिस्तान वाले रीजन है, अफगानिस्तान वाले रीजन है, उसको हम लोग पहले पाकिस्तान वाले रीजन और राजस्थान वाले रीजन, उनको हम लोग पहले क्या बोला करते थे, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स। वहां से अर्जन सिंह ने पहली उड़ान भरी थी। क्लियर है? किनके लिए? एज अ मेंबर ऑफ रॉयल इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन। After a brief stint with the newly formed number 2 RIAF squadron, where the Marshal Liu against the tribal forces, he later moved back to number 1 squadron, a flying officer to fly the Hawker Hurricane. यहाँ पे ये छोटा काम करने के बाद इनका कार्यकाल जो होता है, जो नए स्क्वाड्रन फॉर्म किया गया था नंबर 2 इन रॉयल इंडियन फोर्स, उनमें ये छोटे अंतराल के लिए काम करते हैं, जहाँ पे उन्होंने किनके खिलाफ काम किया था, ट्राइबल फोर्सेस के खिलाफ। ट्राइबल फोर्सेस जो आदिवासी लोग थे उस टाइम पे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट्स की जो खिलाफ कर रहे थे, उनके खिलाफ उन्होंने क्या किया था, काम किया था। और उनके कुछ दिन के बाद उनको फिर से नंबर 1 स्क्वाड्रन में लाया गया, और इस बार जो आए वो, तो इस बार वो ऑफिसर के तौर पर नंबर 1 RIAF स्क्वाड्रन में ज्वाइन किए। फ्लाई टू द हॉकर होरिकेन, और वो जो उड़ा करते थे, किनके लिए उड़ा करते थे, हॉकर होरिकेन्स के लिए काम किया करते थे। He was promoted to the ranks of squadron leader in 1944, और उनका रैंक को प्रमोट कर दिया गया 1944 में। किस रैंक पे उनको पहुंचा दिया गया, स्क्वाड्रन लीडर के। For his role in successful leading the squadron in combat, he was awarded the Distinguished Flying Cross in 1944, और उनके सक्सेसफुल रोल के लिए उनको क्या दिया गया, अवार्ड से नवाजा गया 1944 में, और वो अवार्ड्स का था तुम्हारा डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस DFC। On August 15, 1947, he achieved the unique honor of leading fly past of over 100 IF एयरक्राफ्ट ओवर द रेड फोर्ट इन दिल्ली। और जब भारत आज़ाद होता है 1947 में, तो अर्जन सिंह जो है पहला व्यक्ति बने जिनको ये ऑनर दिया गया फ्लाई पास्ट करने के लिए। फ्लाई पास्ट मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में क्या होता है। फ्लाई पास्ट मतलब एबव द बिल्डिंग क्या करना है, जहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है उनके ऊपर क्या करना है हम लोग को, फ्लाई करना है एरोप्लेन को, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लाई पास्ट बोलते हैं। और 1947 में अर्जन सिंह के द्वारा लीड किया गया था फ्लाई पास्ट, कहाँ पर, रेड फोर्ट के ऊपर। और कितने एयरक्राफ्ट थे, 100 एयरक्राफ्ट थे। क्लियर है? ओवर ये 100, लगभग 100 के आसपास एयरक्राफ्ट थे जिनको उन्होंने क्या किया था, लीड किया था। After his promotions to the rank of wing commanders, he attended the Royal Staff College at the UK। जब उनका रैंक को और प्रमोट कर दिया गया, जब वो विंग कमांडर्स के रैंक पर आ गए, तो वो क्या किए, रॉयल स्टाफ कॉलेज जो है, जो यूके में है, उनको वो क्या ज्वाइन कर गए। इमीडिएटली आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस ही कमांडेड अंबाला इन द रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन। जब भारत आजाद होता है उनके बाद उनको अंबाला का ग्रुप कैप्टन बना दिया जाता है, ये रैंक से उनको नवाजा जाता है, ग्रुप कैप्टन। He attended the Royal Staff College, okay, in 1949, so he was promoted to the rank of Air Comrade and took over as officer commanding AOC of an operational command, which later came to be known as Western Air Command। 1949 में क्या होता है, उनका रैंक को प्रमोट करके उनको क्या बना दिया जाता है, एयर कॉमरेड बना दिया जाता है, टू कवर हिज ऑफिसर कमांडिंग। और उनके बाद उनको ऑफिसर कमांडिंग दिया जाता है, एयर ऑफिसर कमांडिंग एओसी भी बना दिया जाता है। ऑपरेशनल कमांड एओसी किनका बनाया जाता है, जो उस वक्त काम कर रहे होते हैं जो स्क्वाड्रन, उनका उनको क्या बना दिया जाता है, एयर ऑफिसर कमांडिंग बना दिया जाता है, कमांड बना दिया जाता है, विच लेटर केम टू बी नोन एज, और जो कि बाद में जाना जाता है वेस्टर्न एयर कमांड। वेस्टर्न एयर कमांड के नाम से फेमस हो जाता है। अभी हम लोग उनको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न एयर कमांड बोलते हैं, जो कि जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है,
अंबाला में भी चेक करना पड़ेगा. Okay, Singh had the distinctions of having the longest tenure as AOC of an operational base initially from 1949 to 1952 and then again from 1957 to 1961. राइटर जो है यहाँ पर ये बोल रहे हैं जो अर्जन सिंह साहब थे उनका सबसे ज्यादा टेन्योर रहा किस फील्ड में, एओसी की फील्ड में, एयर ऑफिसर कमांडिंग के फील्ड में उन्होंने सबसे ज्यादा ऑपरेशंस किया. शुरू में उन्होंने 1949 से 1952 तक किए और बाद में फिर उन्होंने 1957 टू 1961 तक किए. It means in first terms he served as 3 years and in second terms he also served for 3 years. Totally he served AOC officer for 6 years. After his promotion to the rank of Air Vice Marshal, he was appointed as the AOC in Chief of an Operational Command. कुछ समय के बाद उनका रैंक जो है और उनको क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, प्रमोट कर दिया गया. ऑफ एयर वाइस मार्शल उनको क्या बना दिया गया, एयर वाइस मार्शल बना दिया. ही वाज अपॉइंटेड एज द एओसी इन चीफ ऑफ एन ऑपरेशनल कमांड. और जो कमांड वहां पे काम कर रहे थे, वेस्टर्न कमांड जहाँ पे वो काम कर रहे थे, उनमें उनको क्या बना दिया गया, एओसी बना दिया गया, एयरफोर्स कमांडिंग ऑफिसर इन चीफ. ये पद से उनको नवाजा गया वेस्टर्न कमांड के. ओके, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1962 war he was appointed as the deputy chief of the air staff and became the vice chief of the air staff in 1963. जैसा कि हम लोगों को मालूम है 1962 में चाइना से वार हुआ था और उस वार में इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट सिर्फ कर रहे थे. लेकिन वार के बाद ही वाज अपॉइंटेड, उनको क्या बना दिया गया, डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के उपाधि से नवाजा गया या फिर उनको ये पोस्ट दे दिया गया. एंड ही बिकेम द वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इन 1963 और वो उस प्रकार से वाइस चीफ स्टाफ बन जाता है 1963 में जब चाइना इंडो साइनो वार समाप्त होता है. उनके बाद उनको क्या बना दिया जाता है, वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ. He was the overall commander of the Joint Air Training Exercise Shiksha held between IAF, Indian Air Force, RAF, Royal Air Force, and RAAF, Royal Australian Air Force. He was overall commander of the Joint Air Training. इनको जो अर्जन सिंह जी थे इनको क्या बना दिया जाता है, कमांडर बना दिया जाता है. किनका, जो ज्वाइंट ट्रेनिंग चल रही थी जिनका नाम क्या था, एक्सरसाइज शिक्षा नाम था, जो कि इंडियन एयरफोर्स के बीच में हो रही थी और ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश एयरफोर्स जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉयल एयरफोर्स बोलते हैं. और तीसरा रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, ऑस्ट्रेलिया के एयरफोर्स के द्वारा किया जा रहा था. इन तीनों के बीच में जो ट्रेनिंग चल रही थी जिनका नाम शिक्षा था, उनका हेड बना दिया जाता है मिस्टर अर्जन सिंह जी को. On August 1, 1964, in the rank of Air Marshal, the Marshal of the Air Force, Arjan Singh, took over range of IAF at a time when it was still rebuilding itself and was gearing up to meet new challenges. और 1 अगस्त 1964 को इन द रैंक ऑफ एयर मार्शल अर्जन सिंह को कौन सा रैंक दे दिया जाता है, एयर मार्शल का रैंक दे दिया जाता है. द मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह टुक ओवर रेंज ऑफ आईएएफ. और मार्शल एयर ऑफ एयर फोर्स अर्जन सिंह ने क्या करता है, वो रैंक को लेता है, ग्रांट करता है, उपाधि लेती है. और उस टाइम पे जो एयरफोर्स था उनको वो फिर से क्या करना स्टार्ट कर देता है, बिल्डिंग करना स्टार्ट कर देता है. एक अच्छा सशक्त एयरफोर्स बनाने की तैयारी में वो लग जाता है और उनको बूस्ट देता है. जो भी नए नए चैलेंज आ रहे थे उनको सॉल्व आउट करके और इंडियन एयरफोर्स को एक मजबूती प्रदान करने में वो लग जाते हैं. सिंह वॉज द फर्स्ट एयर चीफ टू कीप हिज फ्लाइंग फैंसी टिल हिज rank.
और सिंह एक ऐसा व्यक्ति थे, फर्स्ट एयर चीफ थे, जिन्होंने क्या अपना फ्लाइंग कैपेसिटी जो है, फ्लाइंग करेंसी मतलब उनका जो एक्सपीरियंस था, वो क्या करते हैं तब तक रखे रहते हैं, तब तक वो अपना एक्सपीरियंस लेते रहते हैं जब तक वो CAS के रैंक पे थे, चीफ एयर स्टाफ के रैंक पर थे। Having flown over 60 different types of aircraft from pre-World War Second era biplanes to the more contemporary Gants and Vampires, he has also flown in transport aircraft like the Super Constellations। और ये क्या बोल रहे हैं, सिंह साहब जो थे, अर्जन सिंह साहब जो थे, वो लगभग 60 से भी ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के एयरक्राफ्ट को वो फ्लाई कर चुके थे। कब से? वर्ल्ड वार सेकेंड की टाइम से लेकर और जब तक वो इंडियन एयरफोर्स में सर्व करते रहे। वो एयरक्राफ्ट ही नहीं, सिर्फ मिलिट्री एयरक्राफ्ट ही नहीं फ्लाई करते थे, ये क्या करते थे, जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे उनको भी ये चला लेते थे, जिनका नाम क्या था, जैसे कि सुपर कॉन्स्टेलेशंस। ये क्या था, कैरियर एयरक्राफ्ट था जो ये यूज कर लेते थे, चलाते थे, क्लियर, फ्लाई करते थे उस वक्त। इन 1965 when Pakistan launched its Operation Grand Slam with an armored thrust targeted at the vital town of Akhnur, Singh led IAF throughout the war with courage, determination and professional skill। जब 1965 में पाकिस्तान क्या करता है, इंडिया के खिलाफ वॉर छेड़ता है, और उस ऑपरेशन का पाकिस्तान नाम क्या दिया हुआ था, ग्रैंड स्लैम। और उसमें जो पाकिस्तानी आर्मी थे वो क्या कर रहे थे, इंडिया की ओर कूच कर रहे थे, आ रहे थे। तो सिंह साहब के द्वारा उस टाइम पे क्या किया गया, इंडियन एयरफोर्स को लीड किया गया पूरे वॉर में, और उस वॉर में अपना जज्बा, साहस, करेज, हिम्मत, डिटर्मिनेशन, फोकस्ड एंड प्रोफेशनल स्किल, और उन्होंने जो सब सीखा था, जो प्रोफेशन था जॉब करने का, उनके मदद से वो पाकिस्तानी आर्मी को पीछे धकेलते हैं। ही इंस्पायर्ड IAF टू विक्ट्री, और उन्होंने इंस्पायर्ड किया इंडियन एयरफोर्स को, किसके लिए, विजय के लिए, कि तुम जीतो। Now, despite the constraints imposed on the full-scale use of Air Force combat power, इसके बावजूद जो क्या किया गया था कि फुल स्केल एयरफोर्स का जो पावर है उनको यूज कर नहीं करना है, क्योंकि जब भी वार हो रहा था तो उस टाइम पे 1965 में, तो उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट्स ने क्या बोला था कि जो पूरे हमारा जो स्ट्रेंथ है एयरफोर्स का, उनको ज़्यादा यूज नहीं करना है, फुल स्केल वार नहीं करना है एयरफोर्स का। लेकिन वो क्या कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में ही अच्छे से लड़े और अपना करेज दिखाया, डिटर्मिनेशन दिखाया, और प्रोफेशनल स्किल के बदौलत उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को हराया। In 1965, when Pakistan launched inspired, okay, he remained a flight to the end of his tenure in IAF, visiting forward bases and units and flying with the squadron। क्या बोला जा रहा है, जब तक वो रहे इंडियन फोर्स में तो वो क्या करते थे, अपने टेन्योर तक वो फॉरवर्ड बेसिस जो होता है, फॉरवर्ड बेसिस मैंने बताया था किनको बोलते हैं, जो बॉर्डर से, दूसरे देश के बॉर्डर से सटा हुआ होता है, जहाँ पे युद्ध होने का, वॉर होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्लियर है, और वहाँ पे जो दोनों देश के आर्मी होते हैं वो आमने सामने होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बेसिस बोलते हैं। तो ये उस टाइम पे जब एयरफोर्स में थे तो ये क्या करते थे, उस टाइम पे फॉरवर्ड बेसिस पे भी जाते थे और यूनिट्स को देखते थे किस प्रकार से वो काम कर रहा है, फ्लाइंग विद स्क्वाड्रन, और अपने स्क्वाड्रन के साथ भी फ्लाई करते थे। स्क्वाड्रन एयरफोर्स में किनको होते हैं, ग्रुप होता है, क्लियर है, वो क्या कहलाता है, तुम्हारा स्क्वाड्रन कहलाता है। He retired in August 1969, thereupon accepting ambassadorships to Switzerland। जब वो 1969 में रिटायर होते हैं तो उनको क्या बना दिया जाता है, एम्बेसडर बना दिया जाता है इंडिया का। कहाँ के लिए, कौन सी जगह जाते हैं एम्बेसडर बन के, वो स्विट्जरलैंड जाते हैं। He was Lieutenant Governor of Delhi from December 1989 to December 1990, और उनके बाद उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बनाया जाता है, LG भी बनाया जाता है। कहाँ का, दिल्ली का। दिल्ली में जो होते हैं
गवर्नर नहीं होता है, वहाँ पे क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट्स के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है या फिर उनको पावर दी जाती है। तो लेफ्टिनेंट सॉरी अर्जन सिंह को जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल भी बनाया जाता है दिल्ली का। कब से कब तक, दिसंबर 1989 टू दिसंबर 1999 फॉर 1 year। ओके, having been a source of inspirations to all the personnel of armed forces throughout the year, the government confirms the rank of the marshals of the Air Force upon Arjan Singh in January 2002, making him the first and the only five-star rank officer with Indian Force। उनके बाद क्या होता है, हैविंग बीन सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन, उनसे शिक्षा लेते हुए, इंस्पायर होते हुए, ऑल द पर्सनल ऑफ आर्म फोर्सेस, जितने भी आर्म फोर्सेस थे, आर्म फोर्स के पर्सनल थे, लोग थे या आर्मी थे, थाउज द ईयर्स, यानी कि हर साल, यानी जिस प्रकार से जाता जाता है उनसे क्या लेते हैं, सीख लेते हैं, जो भी उस फील्ड में जाता है इंडियन एयरफोर्स में। तो एक आदर्श बताया जाता है किनके बारे में, डॉक्टर अर्जन सिंह जी के बारे में, कि वो किस प्रकार से अपने कार्यकाल में काम किए, किस प्रकार से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ा, किस प्रकार से उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए काम किया, वर्ल्ड वॉर में किस प्रकार से उनका भूमिका रहा, ये सब चीज़ के बारे में इंडियन आर्मी को बताया जाता है, उनके बारे में पढ़ाया जाता है और उनसे इंस्पायर्ड किया जाता है। द गवर्नमेंट कन्फर्म्स द रैंक ऑफ मार्शल, और इंडियन गवर्नमेंट जो थी उनको कौन सा रैंक दिया था, मार्शल का रैंक दिया था, किनका, ऑफ द एयरफोर्स अपन अर्जन सिंह, जब अर्जन सिंह चले गए इन जनवरी 2002, मेकिंग हिम द फर्स्ट एंड द ओनली 5-star रैंक ऑफिसर विथ इंडियन आर्मी। और 2002 में, जनवरी के 2002 में वो एक पहला व्यक्ति बने इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल बने जिनको 5-star रैंक से नवाजा गया इंडियन एयर फोर्स में, जो कि अभी तक किसी को 5-star रैंक नहीं दिया गया है। वो पहला व्यक्ति है जिनको 5-star रैंक से इंडियन एयर फोर्स में नवाजा गया। ओके गाइज, दिस इज द टोटल summary of your chapters 1.3 on wings of courage। Here we read some things, we have just told our summary of these chapters. Now we have completed few questions which are asked in your textbooks. We see here what we learned from this summary. There are few questions whose answers we got from today's summary. We see what questions and we get today. First question was what enabled अर्जन सिंह to the DFC award। ऐसा कौन सा वर्क था, काम था अर्जन सिंह का जो गवर्नमेंट को उनको DFC अवार्ड देने के लिए मजबूर कर दिया गया, क्लियर है, या फिर उनको दिया गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन, एट व्हाट एज डिड अर्जन सिंह बिकम ए स्क्वाड्रन लीडर। कौन से एज में अर्जन सिंह जो है स्क्वाड्रन के लीडर बने। आई हैव जस्ट टोल्ड यू अबाउट 19 ईयर्स, 19 साल के एज में ही उन्होंने इंडियन आर्मी को क्या किया था, ज्वाइन कर लिया था। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग डिड अर्जुन सिंह होल्ड द पोस्ट ऑफ एओसी। एओसी का जो पोस्ट है अर्जुन सिंह कितने साल तक होल्ड करके रखे, अपने पास रखे। अभी मैंने बताया था तुमको कि 3 ईयर्स शुरू में रखे थे, कब से कब तक, 1949 टू 1952, और सेकेंड टाइम्स उन्होंने कब तक रखा था, 1957 टू 1961 तक। तो 3 + 3 = 6 ईयर। तो कितने साल तक अर्जुन सिंह ने एओसी की पोस्ट को होल्ड किया, 6 ईयर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट अपील टास्क डिड सिंह फेस व्हेन ही टुक ओवर एज एयर मार्शल। जब वो एयर मार्शल बनाया गया तो उनको कौन सा टास्क दिया गया, इनको अर्जुन सिंह जी को, क्लियर है। ये सारे क्वेश्चन तुमको घर से करने हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट अदर इंपॉर्टेंट पोजीशंस डिड अर्जुन सिंह होल्ड आफ्टर हिज रिटायरमेंट। जब अर्जुन सिंह रिटायर हो जाते हैं तो वो कौन कौन से पोस्ट को ग्रहण करते हैं, कौन कौन से पोस्ट पर वो बैठते हैं, क्लियर है, कौन से पोस्ट के लिए वो वर्क करते हैं। मैंने भी बताया 19 में क्या होता है, 1989 टू 1999 में क्या होता है, अर्जन सिंह को क्या बना दिया जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया जाता है, और उनसे पहले उनको क्या बना दिया जाता है, एम्बेसडर बना दिया जाता है, कहाँ का,
स्विट्जरलैंड के लिए। तो ये सब उनका क्या था आफ्टर रिटायरमेंट अचीवमेंट था। क्लियर है? यू हैव टू जस्ट कंप्लीटेड ऑल दिस 5 क्वेश्चंस from work and submit your homework on Jesus International's app. Okay, thank you for joining classes. Please subscribe the channels and share it with your friends to enhance our boost. Thank you guys to joining classes.